پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کو ترقی یافتہ ملکوں کے تعلیمی نظام سے واقفیت دلانے اور اعلیٰ تعلیم کے لیے ان ملکوں میں داخلے حاصل کرنے سے متعلق مواقع دینے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے ایسے طلباء کو بیرون ملک تعلیمی دوروں پر بھیجنے کا سلسلہ 2008 سے جاری ہے۔ یہ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کا گروپ ہے جنہوں نے اپنے بورڈز اور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور پورے پاکستان سے میرٹ پر اس دورے کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں کے یونیورسٹی جو ہم نے وزٹ کیے ہیں کافی ریسرچ اورینٹیڈ ہیں، کافی یہاں پہ پروگریسو تھنکنگ اور کریٹیکل انالیسس پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ آئی تھنک فریڈم آف چوائس ہے، یعنی کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں آپ جو بھی کریں آپ اس میں ایکسیل کریں، یعنی کہ آپ کوئی اسپیسیفک فیلڈ چوز نہ کریں۔ بہت سے تصورات تھے یورپ کے بارے میں جو کہ محض خیالات پر مبنی تھے اور درست نہیں تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس کاوش کی بدولت انہوں نے مجھے صحیح انداز میں چیزوں کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا اور ایک درست ویژن جو ہے وہ کریٹ کرنے میں میری مدد کی ہے۔ فرینکفرٹ میں ایکچولی آنا ہمیں بہت اچھا لگا، یہاں پہ جس طرح کی کمیونٹی ریسیپشن دی گئی ہے، آئی تھنک اٹس ویری انکریجنگ۔ رانا لیاقت صاحب کا ہم بہت تھینکفل ہے جس طرح کا ایک آسپیشیس سیریمنی ہمارے لیے ارینج کیا۔ یہ گروپ 1 ماہ کے دورے پر ہے اور جرمنی آنے سے پہلے یہ گروپ برطانیہ سمیت یورپ کے بیشتر ملکوں کا دورہ کر چکا ہے۔ اس گروپ میں شریک طلباء کے مطابق اس دورے میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اور سیکھا وہ ایک یادگار تجربہ ہے جو زندگی بھر ان کے کام آئے گا۔ یہاں پہ ہمیں ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف ایجوکیشن سسٹم جس کو ہم نے دیکھا اور اس کو بہت حد تک ہم نے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ہم نے اس کو ریلیٹ کیا، اور یہاں پہ بہت زیادہ چینجز ہم نے پائی ہیں۔ ہم لوگ یہاں پہ یہی چیزیں جو ہے نا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں یہاں کے ایجوکیشن سسٹم میں ہیں وہ ہمارے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہونی چاہیے۔ یونیورسٹیز کا وزٹ کیا ہے، ہمیں اس تعلیمی نظام کو سمجھنے کا موقع ملا ہے، یہ چیز ہے یہ ہمیں انسپائریشن دے گی۔ دوسرا یہاں پہ ہماری ریسیپشن جو کمیونٹیز کے ساتھ اور انٹریکشن ہوا ہے ایمبیسیز میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ہماری اپریشیشن ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان کو حوصلہ دے کر آگے بڑھنے مجبور کرتی ہیں۔ امتحانات میں اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کا وفد ہر سال فرینکفرٹ کا بھی دورہ کرتا ہے اور مسلم لیگ نون جرمنی ان کی میزبان ہوتی ہے۔ اس سال بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اور جرمنی کے صدر رانا لیاقت علی راجپوت نے طلباء و طالبات کے اعزاز میں فرینکفرٹ اینکہائم میں افطار پارٹی کا اہتمام کیا۔ یقیناً ہم اوورسیز پاکستانیوں کے جہاں پہ دل خوش ہوتے ہیں وہاں پہ دلی طور پہ ہم دعائیں دیتے ہیں چیف منسٹر آف پنجاب کو کہ جن کی یہ کاوش سے، جن کی یہ محنت سے یہ بچے پوری دنیا کا ٹور کر رہے ہیں اور یہ یورپ میں آ کر جو کچھ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ان کے علم میں، ان کے تجربے، جس تجربے سے یہ گزر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جا کر یہ امپلیمنٹ کریں گے۔ پاکستانی کونسل خانہ فرینکفرٹ سے کونسل جنرل ڈاکٹر امتیاز احمد قاضی نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ ڈاکٹر امتیاز احمد قاضی نے کہا کہ پاکستانی طلباء جو بھی علم حاصل کریں اس سے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی مستفید ہوں گے، جس سے معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ مجھے جو چیز اچھی لگی وہ یہ تھی کہ یہ نہ صرف ٹاپ پوزیشن ہولڈرز تھے ایکیڈمک ایکسیلنس کے حوالے سے، لیکن یہ کہ اپنے ملک اور کلچر کی نمائندگی کی، لباس میں، گفتار میں، سرائیکی زبان میں بھی تقریریں کی انہوں نے، جس طرح کی نعتیں پڑھی انہوں نے، تو مجھے لگا کہ یہی اصل اثاثہ ہے ہمارے ملک کا، اور جو اپنی ویلیوز اور اقدار کے ساتھ ایکیڈمک معیار میں بھی ایکسیلنس لا رہے ہیں۔ مجھے خوشی اور امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا یہی نسل آگے نام روشن کرے گی۔ آج کا دن ہمارے باعث فخر ہے کہ اتنے پاکستان سے آئے ہوئے ہم کمیونٹی نے ان کو آج دعوت عام دی ہے، یہاں پہ افطاری کا پروگرام رکھا گیا ہے، اور ہمارے ملک کا بہت بڑا یہ اثاثہ ہے بچوں کا جو اس وقت پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ آج ان کا آخری ٹور ہوتا ہے فرینکفرٹ جرمنی کے اندر، یہ پورا یورپ کا ٹور کر کے یہاں پہنچے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ افطاری کر رہے ہیں۔ تقریب کے آخر میں رانا لیاقت علی ایم پی اے پاکستان مسلم لیگ نون، صدر پاکستان مسلم لیگ نون جرمنی نے پاکستان مسلم لیگ نون جرمنی کی طرف سے طلباء و طالبات میں تحائف تقسیم کیے۔ حکومت پنجاب نے پوزیشن ہولڈر طلباء و طالبات کے غیر ملکی دورے کا اہتمام کر کے روشن روایت قائم کی ہے۔ غیر ملکی دورے سے پاکستانی طلباء و طالبات کا ذہنی افق وسیع ہونے کے ساتھ ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا۔ شبیر احمد کھوکھر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔
हम इस बात पे फ़ख्र करते हैं कि हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो पाकिस्तान से बाहर आकर एक पाकिस्तान की इल्म की शमा हाथ में पकड़े हुए हमारे दिलों को जो महसूर कर रहे हैं। और इस पे ये तमाम तर जो इसके पीछे मेहनत है वो CM पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की है। और ऑल पाकिस्तान से उन्होंने बच्चों को यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में, इंग्लैंड में, स्वीडन में, ये पूरी दुनिया की सैर करवा कर, गार्ड ऑफ ऑनर देकर और बच्चों को रिस्पेक्ट देकर बच्चों के हौसले बुलंद किए हैं। और इस तरह पाकिस्तान ने तालीम में एक वो सफ़र शुरू कर दिया है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की रोशन ज़मानत है। आज की शाम हमेशा हर साल जिस तरह ये कौमी लिबास में बच्चे हमारे सामने आकर बैठते हैं और हम वहाँ पे इकट्ठे कौमी तराना पढ़ते हैं और इस तरह हमारे दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं कि ये वो पाकिस्तान के बच्चे हैं और ये हमें पाकिस्तान चाहिए, अमन चाहिए हमें पाकिस्तान हमें फूलता और बढ़ता पाकिस्तान चाहिए। तालीम के बगैर हम इस पाकिस्तान की ना खिदमत कर सकते हैं ना दुनिया के साथ हम मिल सकते हैं। तालीम ही वाहिद वो ज़रिया है जिस पे CM साहब ने हमेशा फुल तवज्जो देकर पाकिस्तानियों को बाहर ये एक बच्चों में एक टैलेंट पैदा कर दिया है कि बच्चे तालीम हासिल करें और वो अपना इनाम पाएँ, दुनिया की सैरें करें। और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, पाकिस्तान में ये तालीम का एक जो रुझान बढ़ रहा है, आम बच्चा जो मज़दूर का बच्चा है दानिश स्कूल में पढ़कर, जो बच्चे आम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं, CM पंजाब साहब उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये बच्चे यहाँ से जो तजर्बे ले रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों से घूमकर और इन प्रोफेसर से, ओवरसीयर से मिलकर, यहाँ की कम्युनिटी से मिलकर जो तजर्बा ले रहे हैं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान में यहाँ की जो यहाँ पे जो इन्होंने देखा है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करेंगे और पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है और तालीम के मामले में पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला वो कोई टाइम दूर नहीं है कि हम सफ़े अव्वल में खड़े होकर पाकिस्तान में वो ये जो हमारे होनहार बच्चे हैं ये तालीम के बेस पर है, ये तलवार नहीं ये कलम के ज़ोर पर आगे निकलेंगे और हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अमन पसंद मुल्क बनवाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हमारे मुल्क के अपने वतन प्यारे नन्हे बच्चे बेटे बेटियां इतनी पोजीशंस लेके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने स्वीडन और UK के बाद जर्मनी तशरीफ़ ले आया और एकेडमिक दौरा किया। हर साल इनसे मुलाकात हुई है, पिछले 3 साल से मेरी बहुत खुशी हुई इनको देख के इस तरह की महफिल में फ्रैंकफर्ट में। 2 चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ है अप्रिशिएशन, दूसरी चीज़ है इंस्पायरेशन। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो ये स्टडी टूर का मैनेज किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, उसका फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पे आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया है, हमें इस तालीमी निज़ाम को समझने का मौका मिला है। ये चीज़ है, ये हमें इंस्पायरेशन देगी। दूसरा, यहाँ पे हमारी रिसेप्शन जो कम्युनिटीज़ के साथ और इंटरेक्शन हुआ है एम्बेसीज में, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये हमारी अप्रिशिएशन है और ये दोनों चीज़ें इंसान को हौसला देकर आगे बढ़ने मजबूर करती हैं। फ्रैंकफर्ट में एक्चुअली आना हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जिस तरह की कम्युनिटी रिसेप्शन दी गई है, आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग। राना लियाकत साहब का हम बहुत थैंकफुल है, जिस तरह का एक ऑस्पिशियस सेरेमनी हमारे लिए अरेंज किया है। बहुत इनकरेजिंग होते हैं, बहुत मोटिवेटिंग होते हैं कि जब आपको रिकग्निशन मिलती है आपके काम के लिए और इस तरह से दी जाए तो डेफिनेटली आपको मोरल बूस्ट करता है। आई थिंक दूसरे लोगों को एक मिलता है कि दे ऑल्सो हैव टू एक्सेल इन लाइफ, जब वो देखते हैं कि दे हैव एक्चुअली एन एम इन फ्रंट ऑफ देम। तो आई थिंक एज सम मॉडल फॉर देम, रोल मॉडल हम एक्ट करते हैं एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू डू दैट। और आई वुड लाइक टू थैंक द चीफ मिनिस्टर पंजाब जिन्होंने हमें ये मौका दिए और एजुकेशन उनके लिए इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में है कि वो इतना ज़्यादा एलोकेट बजट और इतनी ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं इस एजुकेशन टूर के लिए, ताकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ का एजुकेशन लैंडस्केप देखें, पॉलिटिकल सिस्टम देखें, इकॉनमी देखें और फिर वो सारा कुछ जाके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें ताकि बैक देयर पाकिस्तानीज़ और पाकिस्तान को फ़ायदा हो। इसके लिए एक वास्ट मतलब एक बहुत ये
ये नहीं था कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ थी, हम यूनिवर्सिटीज़ गए, लैब्स गए, हमने लाइब्रेरीज़ देखी, हमने पार्लियामेंट्स गए, स्कॉटिश पार्लियामेंट गए, लॉर्ड नज़ीर से मिले, हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स गए, फिर उसके बाद हम एम्बेसीज़ गए। तो एक बहुत ही एक मिला जुलाई के बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था कि सिर्फ एक स्टडी टूर के अलावा देयर वाज सो मच इंटरेक्शन, एक्सपोजर था, कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमने जब लैब्स में देखी तो वी वर एक्चुअली अमेज्ड। और फिर एक आपको जागता है आपके अंदर की अवेकन होती है कि ये वो लेवल है जिस पे हमने अटेन करना है, और इंशाल्लाह इफ़ वी कीप ऑन गोइंग विद दैट स्पिरिट, और आई हैव हाई होप्स मतलब विद पाकिस्तान के हम डेफिनेटली वी विल अचीव द पेडिस्टल वेयर दीज पीपल आर करंटली स्टैंडिंग। हमने एक इतना डेवलप कंट्री देखा, वहाँ से हमने इतना कुछ लेसन्स लर्न किए हैं। आई थिंक काफ़ी हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था, बिकॉज यहाँ लोगों से इस तरह से मिलना, और वैसे भी आई थिंक ओवरऑल हम जिस तरह से हमने यहाँ से चीज़ें सीखी हैं, लेसन्स हमने जो हासिल किए हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के कल्चर को देखा है, वो काफ़ी हमारे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से यहाँ के यूनिवर्सिटी जो हमने विज़िट किए हैं काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड हैं, काफ़ी यहाँ पे प्रोग्रेसिव थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस पे फोकस किया जाता है, और यहाँ पे आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस है, यानी कि यहाँ के स्टूडेंट्स को कहते हैं आप जो भी करें आप उसमें एक्सेल करें, यानी कि आप कोई स्पेसिफिक फील्ड चूज़ ना करें। तो आई थिंक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगी कि यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी डिसिप्लिन है, काफ़ी डेडिकेटेड हैं, जो भी करते हैं अपनी जॉब से बहुत ऑनेस्ट रह के करते हैं। तो आई थिंक मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी कहूँगी कि अपने एज इन कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट अपने उससे अपना फुल दें। आई थिंक यू डू गेट रिवॉर्डेड जो भी आप हार्ड वर्क करते हैं। यहाँ पे हम एक डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम जिसको हमने देखा और उसको बहुत हद तक हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के साथ हमने उसको रिलेट किया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हमने पाई हैं। दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी इन द एजुकेशन सिस्टम, दे टोटली रिलैक्स देयर स्टूडेंट्स एंड देयर स्टूडेंट्स नथिंग हैव bothered about, and I think the students here had a lot of things to learn about, and हम लोग यहाँ पे यही चीज़ें जो है ना चाहते हैं कि जो चीज़ें यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में हैं वो हमारे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में भी होनी चाहिए। बेसिकली फ़र्क प्रोफेशनलिज्म का है। पाकिस्तान के अंदर बासलाहियत लोगों की कमी नहीं है, बहुत बासलाहियत लोग हैं। यही वजह है कि वो दुनिया के अंदर जिस भी मुकाम पर जब भी उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है तो वो कामयाब होते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी लैकिंग चीज़ है कि लोग डायरेक्टेड नहीं है उस जानिब जिस जानिब उन्हें जाना है, उन्हें अपनी डेस्टिनेशन का सही अंदाज़ा नहीं है और सही जो ट्रैक है उसका सही अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इस चीज़ से अवेयर हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे करूँगा वो करियर काउंसलिंग की करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर बच्चा अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये सोचता है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसके बरक्स यहाँ जो बच्चे की काउंसलिंग पहले की जाती है और बच्चा बाद में उसी जो एक मंजिल उसके जहन के अंदर मुतय्यन होती है उसी को खातिर रख कर आगे बढ़ता है, तैयारी करता है और स्पेशलाइजेशन तक पहुँचता है। अब इन दोनों सोचों के अंदर ट्रैक के अंदर और इनके रिजल्ट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है जो कि हमें नज़र आ रहा है। मेरा यहाँ आना मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। आज से 1 माह पहले मैं मीडिया के सामने इस अंदाज में बात नहीं कर सकता था जिस तरह मैं अब कर रहा हूँ। ये एतमाद मुझे इस टूर ने दिया है। मैं वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहिब का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा और सीखने का मौका दिया। मैं बहुत से तसव्वुरात थे यूरोप के बारे में जो कि महज ख्यालात पर मबनी थे और दुरुस्त नहीं थे। वज़ीर आला पंजाब के इस काविश की बदौलत उन्होंने मुझे सही अंदाज में चीज़ों को देखने का मौका फराहम किया और एक दुरुस्त विजन जो है वो क्रिएट करने में मेरी मदद की है।
I will now request now. Ladies and gentlemen, I would request Mr. Qasim Raza Sahab and his wife to please come on stage to accept their gift.